welcome to another video from your chapter Expansion Formulae. So expansion formulae is our chapter's name, and today we are going to solve examples from practice set 5.4, which is given on your page number 28 of maths textbook. So for this particular practice set, we have expansion of a plus b plus c whole square. So we have to expand a plus b plus c whole square. Here I have written the expansion of a plus b plus c whole square. a plus b plus c whole square will be equal to a square. तो पहले का स्क्वायर, देन b स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, देन c स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, प्लस आप लोगों को कैसे लेना है वो याद रखने के लिए बहुत आसान है. So it will be 2ab means 2 into first term into second term plus 2bc 2 into second term into third term plus, so obviously it will be now 2ca third term into first term. तो पहले आपने लिया 2ab plus 2bc, so it will be 2ca. So this will be the expansion of a plus b plus c whole square. Remember this formula because you have to solve examples which are based on this particular formula. So here is our example number 1. It is said that expand 2p plus q plus 5 whole square. So here we consider, आप लोगों को consider करना है 2p is equal to a, q is equal to b and 5 which is equal to c, not r. I have by mistake written it as r, but it should be c. So correct it, it should be c, not r. So by expansion formula, look at the expansion formula. Here we are. So therefore by expansion formula 2p plus q plus 5 whole square will be equal to a square, मतलब 2p का स्क्वायर जो मैंने ब्रैकेट में लिया है, प्लस b स्क्वायर, b मतलब यहाँ पर है q, तो q का स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर, c is 5, so it should be 5 square, plus it is 2ab, so it will be 2 into 2q into q, plus 2bc, so b is q and c is 5, so it will be 2 into q into 5, plus 2ca, 2 into 5 into a is 2p. Open the bracket, get the squares, get the proper multiplication, we'll see the final answer. 2p का स्क्वायर आपको करना है, 2 का स्क्वायर किया 4, p का स्क्वायर किया p स्क्वायर आया, प्लस q का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मैंने किया है, इट बिकम्स 25, प्लस नाउ हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई नंबर first of all multiply numbers or coefficients you can call. 2 2s are 4, it will be 2 2s are 4 pq. Here I have written 4 pq, plus again multiply numbers. 2 into it is 5, 2 5s are 10q, it will be 10q. Then again multiply numbers, 2 5s are 10, 10 2s are 20p. Here is the 20p. So this will be your answer of expansion of this particular example. Now we shall try for next example. Here is that example, m plus 2n plus 3r whole square. So we have to expand it. Again this will be considered as a, this is b and this one is c. Use the formula, a square means m square plus b square मतलब 2n का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 3r का स्क्वायर प्लस 2 into a into b. 2 into a into b will be equal to
2 into m into 2r, 2 into m into 2r plus 2 into b into c, so it will be 2 into 2n into 3r plus 2 into c, c is 3r into a, that will be n. Open the brackets, get the squares. It will be m square plus 2 का स्क्वायर आया 4n स्क्वायर प्लस अब आपको 3r का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9, r का स्क्वायर r स्क्वायर. So we have to open this particular bracket. For opening the bracket, first of all multiply numbers. 2 2s are 4, it will be 4mn. Here I have written 4mn. Now plus again here also multiply numbers first. 2 2s are 4, 4 3s are 12nr. Look at 12nr. And what will be the last bracket? It will be 2 into 3. 2 3s are 6rm. You can write 6rm or 6mr. It is one and the same. You can write it as rm. So now we'll try for next example. Here is that next example. 3x plus 4y minus 5p whole square, not cube. So by mistake I have written square. Correct it. It is square. Whole square. Now we will expand it. तो ये a हो गया, ये b बन जाएगा और ये c है. तो उसका एक्सपांशन होगा पहले का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर 3x स्क्वायर किया मैंने प्लस b स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर प्लस now c here, c it is minus 5p, so therefore I have used bracket for it. minus 5p का स्क्वायर लिया है मैंने प्लस 2 into a into b, so it will be 2 into 3x into 4y plus 2 into b into c, b is 4y, c is minus 5p. तो इसके लिए मैंने यहां पर ब्रैकेट यूज किया क्योंकि वो माइनस है plus 2 into, once again it is minus, so 2 into c into a, c is minus 5p into a is 3x. Now open the bracket, multiply as well as take the squares. तो 3x का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर जो मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस 4y का स्क्वायर बन गया 16y स्क्वायर. अब माइनस रहो या प्लस, स्क्वायर ऑलवेज प्लस आता है, इसीलिए मैंने माइनस 5p का स्क्वायर को लिखा है प्लस 5 का स्क्वायर 25, p का स्क्वायर p स्क्वायर. नाउ विल ओपन दीज 3 ब्रैकेट्स. फर्स्ट ब्रैकेट 2 into 3, आई एम मल्टीप्लाइंग नंबर्स. तो पहले नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन कर लेना है. 2 3s are 6, 6 4s are 24. Here I have written 24xy, 24xy. Can you see it? Okay. नाउ नेक्स्ट वन. यहां पर भी आपको पहले मल्टीप्लीकेशन करना है नंबर्स की. 2 4s are 8, 8 5s are 40, लेकिन वो माइनस है तो वो माइनस 40 लिख दिया मैंने यहाँ पे. 2 4s are 8, 8 5s are 40, minus 40 yp, it is minus 40 yp. Now here also 2 5s are 10, but it is minus 10, minus 10 into 3 minus 30. यहां पर मैंने लिखा है minus 30 px. So this will be the expansion of your example number 3. Now we'll try for next example. So here is that next example. 7m minus 3n minus 4k whole square. तो यहां पे थोड़ा केयरफुल रहना है क्योंकि साइन माइनस आए हैं. So while multiplication or while taking multiplication of the number, be very careful. तो यहां पर पहले लिखना है a का स्क्वायर, तो वो 7m का स्क्वायर लिख दिया. फिर b का स्क्वायर, तो वो माइनस 3n है तो उसका स्क्वायर लिख दिया. प्लस c स्क्वायर, नाउ ऑब्वियसली इट विल बी minus 4k होल स्क्वायर.
Now be careful here. 2 into A is 7m into B minus 3n. So I have used bracket here. Plus 2 into B is minus 3n and C is minus 4k. तो उन दोनों के लिए मैंने सेपरेट ब्रैकेट यूज किया है. प्लस 2 इंटू C is minus 4k, उसको ब्रैकेट में लिखा है माइनस है, इंटू A is 7m. चलो ओपन करते हैं सभी ब्रैकेट्स को. 7m का स्क्वायर हो गया 49m स्क्वायर. 3n का स्क्वायर तो वो बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, n का स्क्वायर n स्क्वायर, लेकिन माइनस यदि रहा तो भी उसका स्क्वायर प्लस बन जाएगा. माइनस 4k का स्क्वायर प्लस होगा 16k स्क्वायर. अब इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन करना है, ये ब्रैकेट को ओपन करना है. 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, बट इट विल बी माइनस 42 mn, माइनस 42 mn. उसके बाद हियर वी आर 2 3 जा 6, बट इट इज माइनस 6, माइनस 6 इंटू माइनस 4, माइनस माइनस प्लस बन गया, माइनस 6 इंटू माइनस 4 वो 24 बन जाएगा 24nk. यहां पर मैंने लिख दिया है 24nk. तो ये ब्रैकेट मैंने सिंप्लीफिकेशन करके यहां लिखा है. और देखते हैं अब आखिरी का ब्रैकेट. यहां पर है 2 इंटू माइनस 4 इंटू 7. तो पहले नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन करवा लेते हैं. 2 4 जा 8, बट इट इज माइनस 8, माइनस 8 इंटू 7, 8 7 जा 56, माइनस 56 km, माइनस 56 km. तो यहां पे आपका एग्जाम्पल नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है. नाउ विल स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 2, विच इज सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफाई दोज एग्जाम्पल्स. These examples are quite important and little bit difficult one. So while solving them, please pay attention. So first bracket is x minus 2y plus 3 whole square. तो यहां पर भी आपको a plus b plus c whole square का फॉर्मूला यूज करना है. उसी प्रकार से here we have x plus 2y minus 3 whole square. यहां पर भी आपको a plus b plus c whole square का फॉर्मूला यूज करना है. मतलब ये दोनों ब्रैकेट के लिए आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है. सो लेट अस स्टार्ट एक्सपांडिंग. a plus b plus c whole square. So it will be a square plus b square. Can you see it? Plus c square. So I am showing it to you. So be very attentive. Now the next step, it will be 2 into a into b, 2 into minus 2i into 3 plus 2 into b into c. So it will be 2 into x into minus 2y plus 2 into c into a, 2 into 3 into x प्लस. अब इस ब्रैकेट के लिए यूज करते हैं पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b. देख लो 2 इंटू a मीन्स x इंटू b, 2y प्लस 2 इंटू b इंटू c, 2i इंटू माइनस 3 प्लस 2 इंटू माइनस 3 इंटू एक्स. कैसे लिखा है? क्योंकि 2 इंटू c इंटू a, सो 2 इंटू माइनस 3 इंटू एक्स. इस प्रकार से मैंने लिखा है. नाउ विल स्टार्ट इट्स सिंप्लीफिकेशन. द सिंप्लीफिकेशन, x का स्क्वायर लिख दिया x स्क्वायर, माइनस 2y का स्क्वायर हो गया, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है तो माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लिख दिया, प्लस 3 का स्क्वायर 9. अब इन ब्रैकेट को मुझे सिंप्लीफाई करना है, ओपन करना है. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, लेकिन माइनस 12 लिखना है, माइनस 12y. हियर आई हैव रिटन माइनस 12y प्लस. चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट ब्रैकेट देखते हैं. सॉरी ब्रैकेट है वो, स्टेप नहीं है. प्लस पहले अंदर का मल्टीप्लीकेशन करवा लेते हैं. 2 2 जा 4, लेकिन वो माइनस 4 बन जाएगा, माइनस 4xy. हियर आई हैव रिटन माइनस 4xy. नाउ विच इज द नेक्स्ट ब्रैकेट? दिस विल बी द नेक्स्ट ब्रैकेट.
2 3 6 x, here I have written 6x प्लस अब ये दूसरे ब्रैकेट का एक्सपांशन शुरू हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, माइनस रहा तो भी स्क्वायर प्लस बन जाता है। उसी प्रकार से ना ओपन दिस ब्रैकेट, 2 2 जा 4xy, वो प्लस है तो यहाँ पे मैंने प्लस 4xy लिख दिया है। नाउ नेक्स्ट ब्रैकेट, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, लेकिन वो माइनस है, माइनस 12y। ओके, कैन यू सी इट, माइनस 12y here, and the last bracket we'll open it, 2 3 जा 6 minus 6x, here I have written. So there are so many terms, we have to collect the similar terms, either we have to add them or subtract them. We'll start with x square. तो ढूंढते हैं x square जैसा कोई टर्म है क्या। This will be x square, come on carry on, this will be another x square, तो x square और x square बन गया 2x square। आप देख सकते हैं, here I have written. Now which is the next one, 4y square। उसी टर्म के लिए कोई लाइक टर्म है तो उसे ढूंढना है। तो 4y स्क्वायर के लिए दूसरा टर्म देखते हैं, प्लस 4y स्क्वायर है, मतलब दोनों भी प्लस 4y स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर, इनका एडिशन हो जाएगा 8y स्क्वायर, 4 प्लस 4 8y स्क्वायर, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा। अब नेक्स्ट टर्म है 9 प्लस 9, कोई और टर्म है तो उसे देख लेते हैं, है। सो प्लस 9 एंड प्लस 9 गिव्स अस minus 18, sorry plus 18, not minus, it is plus 18। अब देखते हैं माइनस 12y के लिए कोई टर्म है क्या। यहां पर माइनस 12y है और फिर से माइनस 12y आया है, तो माइनस 12y और माइनस 12y इन दोनों का एडिशन बन जाएगा, लेकिन एडिशन होगा माइनस, सो इट विल बी माइनस 24y। आगे देखते हैं आखिरी टर्म जो है फर्स्ट ब्रैकेट का, माइनस 4xy, तो इसके लिए कोई कॉमन है तो वो देख लेते हैं। माइनस 4xy यहां पर है, लेकिन प्लस 4xy यहां पर है, तो दीज टू विल गेट ऑटोमेटिकली कैंसल्ड बिकॉज दे आर अपोजिटली साइन। सिमिलरली लास्ट टर्म, दिस इज नॉट द लास्ट टर्म, दिस विल बी लास्ट टर्म, 6x, ये प्लस 6x है और उसके लिए माइनस 6x है, तो ये सब्ट्रैक्शन होने के बाद ये दोनों कैंसल हो जाएंगे। सो फाइनली दिस विल बी योर आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 1 फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन। नाउ वी शैल ट्राई फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो हियर इज दैट प्रॉब्लम, 3k minus 4r minus 2m होल स्क्वायर, और दूसरा ब्रैकेट है 3k प्लस 4r माइनस 2m होल स्क्वायर, लेकिन ये दोनों का सब्ट्रैक्शन है, तो इसीलिए मैंने इसका एक्सपांशन फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा है और माइनस जो दूसरा ब्रैकेट है उसका एक्सपांशन दूसरे ब्रैकेट में लिखा है। सो बी केयरफुल। तो पहले देखते हैं इसका एक्सपांशन, a का स्क्वायर जो मैंने लिखा है 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, देख लेते हैं 2 इंटू ए 3k इंटू बी माइनस 4r, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी माइनस 4r इंटू माइनस 2m, प्लस 2 इंटू c इंटू a, सो इट विल बी माइनस 2m इंटू 3k। तो ये एक्सपांशन हो गया फर्स्ट ब्रैकेट का, तो यहां पर मैंने फर्स्ट ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है, माइनस। अब देखते हैं दूसरा ब्रैकेट, a का स्क्वायर तो वो 3k है, उसका स्क्वायर लिख दिया, प्लस b का स्क्वायर 4r का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर माइनस 2m का स्क्वायर, क्योंकि साइन के साथ लेना है, प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू 3k इंटू 4r, 3k इंटू 4r, प्लस 2 इंटू b इंटू c, 2 इंटू b, b is 4r and c is minus 2m, plus 2 into c into a, so it will be minus 2m into 3k। तो ये मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है। सो हियर वी आर,
पहला ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो पहला टर्म जो था वो था 3k का स्क्वायर, तो वो मैंने लिख दिया 9k स्क्वायर। दूसरा टर्म था -4r का स्क्वायर, तो माइनस भी रहा तो स्क्वायर तो पॉजिटिव आने वाला है, तो प्लस 16r स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म था -2m होल स्क्वायर, तो उसका प्लस 4m स्क्वायर बन गया। अब देखते हैं आगे। जो टर्म था वो था 2 इंटू 3k इंटू 4, तो उसका मल्टीप्लीकेशन मैंने किया, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 -24 kr प्लस जो नेक्स्ट ब्रैकेट था वो था 2 इंटू -4r इंटू -2m, तो उसका भी मल्टीप्लीकेशन किया, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, लेकिन वो प्लस बन जाएगा 16rm। उसी प्रकार से नेक्स्ट टर्म था 2 इंटू -2m इंटू 3k, उसका मल्टीप्लीकेशन करवा लिया मैंने, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, -12 mk ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट इट विल बी 9k स्क्वायर, सेम टू दैट ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट, 9k स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 24kr माइनस 16rm माइनस 12mk। तो यहां तक मैंने सिंप्लीफिकेशन कर दिया है। Let us see next step. Open the bracket because minus sign is there in between those two brackets. So after opening, first bracket is as it is, 9k square plus 16r square plus 4m square minus 24kr plus 16rm minus 12mk as it is। लेकिन अब ये माइनस साइन से ये ब्रैकेट के पूरे टर्म के साइन चेंज होने वाले, जो प्लस थे वो माइनस बन जाएंगे, यदि माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। तो 9k स्क्वायर हो गया माइनस 9k स्क्वायर, 16r स्क्वायर हो गया माइनस 16r स्क्वायर, प्लस 4m स्क्वायर बन गया माइनस 4m स्क्वायर, प्लस 24kr चेंजेस इनटू माइनस 24kr, minus 16rm changes to plus 16rm, minus 12mk changes to plus 12mk. Now just like previous example we will collect similar terms. तो शुरुआत करते हैं 9k स्क्वायर से। तो देखते हैं 9k स्क्वायर के लिए कोई लाइक टर्म है क्या इन द सेकेंड ब्रैकेट। तो 9k स्क्वायर के लिए लाइक टर्म है, लेकिन एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, तो ये दोनों कैंसल हो गए बिकॉज दे आर अपोजिटली साइन। तो मैंने इसीलिए यहां पर डॉट लिखा है, तो वो कैंसिल हो गए। ना 16r स्क्वायर प्लस है, तो दूसरे ब्रैकेट में 16r स्क्वायर माइनस है, वो भी अपोजिट है, वो भी कैंसिल हो गए। ना नेक्स्ट इज 4m स्क्वायर और दूसरा फिर से माइनस 4m स्क्वायर, उसके लिए भी डॉट लिखा, वो भी कैंसिल हो गए क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इट इज माइनस 24kr, उसके लिए सिमिलर टर्म लाइक टर्म है माइनस 24kr, दोनों भी माइनस है तो एडिशन बन जाएगा, माइनस 24 और माइनस 24 माइनस 48kr। हियर आई हैव रिटन माइनस 48kr। नाउ नेक्स्ट टर्म 16rm फर्स्ट ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में भी है 16rm, वो भी प्लस है, तो उन दोनों का भी एडिशन बन जाएगा और वो एडिशन होगा 16 प्लस 16 32rm। हियर आई हैव रिटन 32rm। अब लास्ट जो टर्म था फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस 12mk था, लेकिन सेकेंड ब्रैकेट में प्लस 12mk आ गया, तो ये दोनों भी एक प्लस और एक माइनस होने के कारण कैंसल बन के। सो दिस विल बी योर आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर problem. So here we come to the end of this particular exercise or this particular problem set 5.4. Try to solve these examples on your own and check the answers after watching this particular video once again.